Hello and welcome to class 12th English chapters. Today we are going to start a new chapter that is titled as The Interview of Flamingo, class 12th English. Now this chapter basically has two parts. As the name suggests, it is about interview. जो पहला part है वो interview के बारे में है, जहाँ पे हम बात करेंगे how people have different experiences of interview. First and foremost, आजकल तो podcast का ज़माना है जहाँ पे हम देखते हैं कई सारे लोग podcasters बन गए हैं. We listen to the interviews and we get to know about the lives of people. मेरा favorite जो भी celebrity है, sports person है, minister है, मैं उसकी life को अगर जानना चाहती हूँ तो सबसे best तरीका है मैं उसके podcast को सुन लूँ. I'll get to know so many things which otherwise nobody knows. But एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो सेलिब्रिटीज जिनका इंटरव्यू हो रहा है कई बार उनके साथ बहुत गलत हो जाता है. कैसे? दे हैव पर्सनल लाइव्स ऑफ देयर ओन. कई बार वो कुछ ऑफ कोर्स एवरीथिंग कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू लाइमलाइट. हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत पर्सनल होती हैं, लेकिन जब इंटरव्यू लिया जाता है, जब वो लेयर्स को अनलेयर किया जाता है, कई सारी उनसे ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है जो वो शेयर नहीं करना चाहते. एग्जाम्पल बताइए, कल आपको वो लड़की के साथ वहाँ स्पॉट किया गया था, तो आर यू इन अ रिलेशनशिप, आर यू डेटिंग ईच अदर. नाउ मे बी द पर्सन डजंट वांट टू शेयर ऑल दोज थिंग्स. तो कुछ प्रोमिनेंट लोगों के व्यूज बताए गए हैं. फर्स्ट पार्ट में किसी ने कहा दैट इंटरव्यू इज लाइक ए थंब प्रिंट ऑन द विंड पाइप. ऐसा लगता है कि गले को इतना स्ट्रांगली पकड़ लिया गया है कि विंड पाइप पे भी हाथों के निशान बन गए हैं. सो वी हैव सम प्रोमिनेंट पीपल स्पीकिंग समथिंग अबाउट इंटरव्यू. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूजुअली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डिड सॉल वेलो से फॉर इंटरव्यू, और व्हाट व्यूज रुडयार्ड किपलिंग हैड फॉर इंटरव्यू. उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस फर्स्ट पार्ट को पढ़ना है. सेकेंड इज एक्चुअली एन इंटरव्यू. So that is taken by an interviewer whose name is Mukund Padmanabhan, and he is interviewing a man whose name is Umberto Eco. So let us understand the chapter line by line and see what all of these things mean. Starting with part 1. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. हमें पता है इंटरव्यू एक बहुत prominent position occupy करता है जब हम journalism की बात करते हैं. Today almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. अब ये तो चैप्टर बहुत पहले लिखा हुआ है, अभी तो हम पॉडकास्ट के ज़माने में जी रहे हैं. एवरी सेकेंड पर्सन इज अ पॉडकास्टर. So we have accessibility, we have access to multiple people. We can know about their lives, their personal lives, their struggles and all those things through interviews. So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. अलग-अलग लोगों के अलग-अलग opinions हैं इंटरव्यू को लेके. Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice and art. कुछ लोग कहते हैं कि ये सच्चाई का एक बहुत बड़ा माध्यम है और ऑफ कोर्स ये एक आर्ट है. हर कोई व्यक्ति इंटरव्यू नहीं ले सकता. किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे चीज़ों को लिंक करना है, कब चुप होना है, कब सामने वाले को बोलने का मौका देना है. These all things are different. Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. Please underline this. So कुछ लोग जो celebrities जो इसके victim हैं वो कहते हैं कि ये unnecessary interruption है उनकी personal life में, और feel that it somehow diminishes them. Diminish का मतलब होता है गायब करना. यहाँ पे इसका मतलब है वो उनको कहीं छोटा कर देता है. Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. पहले के किसी कल्चर में माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी का फोटोग्राफ ले रहा है तो मतलब वो उसकी आत्मा चुरा रहा है. तो ऐसे ही इंटरव्यू के लिए कुछ लोग कहते हैं that this is an unwarranted intrusion. एक ऐसा इंट्रूजन जहाँ पे गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, कुछ भी पूछ लिया जाएगा. V.S. Naipaul feels that V.S. Naipaul is a prominent diasporic writer. वो ये कहते हैं people are wounded by interviews and lose a part of themselves. लोगों को इतनी हानि पहुंचती है इंटरव्यू से कि उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had just horror of interviewer and he never consented to be interviewed. उसको इतना डर था कि उसने कभी इंटरव्यू देने के लिए हाँ ही नहीं कही. It was his horror of being lionized which made him thus repel would
be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with such satisfaction and amusement. I'll tell you what this is all about. But explain करने से पहले, जैसे विराट कोहली, अभी हमने देखा विराट कोहली along with his wife they have shifted to London, क्योंकि लाइमलाइट बहुत ज़्यादा बेयर करके इंसान इतना फ्रस्ट्रेट इरिटेट हो जाता है लाइमलाइट से कि उसको लगता है कि अब सुकून चाहिए. एंड दैट इज वाई मे बी द कपल हैज डिसाइडेड टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री वेयर नोबडी नोज देम एंड दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ. फॉर पीपल लाइक अस, हमें शायद सेलिब्रिटीज को देख के लगता होगा वाओ क्या बढ़िया जिंदगी है, बट देयर पेन ओनली दे कैन अंडरस्टैंड बिकॉज दे डोंट हैव एनी पर्सनल लाइफ ऑफ देयर ओन. जहां जाएंगे मीडिया पीछे पीछे चला जाएगा. तो ये जो है लुइस कैरोल, इनको इतना डर था और इसीलिए ये क्या करते थे, ये दूर रहते थे किन लोगों से, एक्वेंटेंसेस से जो जान पहचान वाले लोग हैं, इंटरव्यूअर्स से, और पर्सिस्टेंट पेटिशनर्स ऑफ जो लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज एक ऑटोग्राफ सर, एक ऑटोग्राफ. और वो क्या करते थे फिर, वो बहुत ही शान से कहानियां बताते थे कि देखो मैंने वो फोकट का इंटरव्यू वगैरह जो मांग रहा था उन लोगों को कैसे शांति से चुप करवा दिया. हंसी मजाक से, सेटिस्फैक्शन से वो इन चीज़ों को शेयर करते हैं. लुइस कैरोल. Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. Rudyard Kipling तो और नफरत भरा attitude express करते हैं. His wife Caroline writes in her diary for 14 October 1892 that the day was wrecked by 2 reporters from Boston. तो Rudyard Kipling की जो वाइफ है कैरोलिन, वो ये कहती है कि हमारा तो पूरा दिन ही 2 रिपोर्टर्स ने बिगाड़ दिया था. Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. ये immoral है, अनैतिक है. It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person as an assault and just as much merits punishment. तो ये एक गुनाह है, एक पाप है और इसके लिए पनिशमेंट देना ज़रूरी है. It is cowardly and vile. ये तो बहुत ही कायरता वाला काम है. No respectable man would ask it, much less give it. कोई भी सम्माननीय व्यक्ति न तो इसके बारे में पूछेगा और न ही इसे देगा. क्या? इंटरव्यू. So we have discussed about V.S. Naipaul, Lewis Carroll, and now Rudyard Kipling and his wife Caroline. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years ago. Kipling ने भी ऐसा ही अत्याचार मार्क ट्वेन पे किया है. That means Kipling had taken interview of Mark Twain. H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal but was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. H.G. Wells ने इसको एक इंटरव्यू ऑर्डील कहा है. ऑर्डील एक बहुत ही हार्श एक्सपीरियंस होता है और खुद ही इंटरव्यू लेने लग गए थे जोसेफ स्टालिन का. Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being thumbprints on windpipes. तो जैसे किसी के गले को जोर से पकड़ लेते हैं तो कैसे निशान बन जाता है. सॉल बेलो का कहना है कि इंटरव्यू तो जैसे अंगूठे के हाथों के निशान बन गए हों किसी की विंडपाइप पे, ऐसा है. Yet despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable means of medium of communication. बहुत सुप्रीम वे है कम्युनिकेशन का. These days, more than any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Dennis Bryan has written, almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. तो हम जानते हैं, ये तो बहुत पहले चैप्टर लिखा गया है. हम जिस एरा में रह रहे हैं, this is the era of podcasting. There are multiple podcasts available and you can know the details of your favorite celebrity by just listening to few interviews. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. So that's the end of first part of interview. Let's begin the second part of interview now. I am a professor who writes novels on Sundays, Umberto Eco. The following is an extract from an interview of Umberto Eco. I told you in the beginning, ये एक actual interview का example है. Interviewer जो है वो है मुकुंद पद्मनाभन और जिस व्यक्ति का interview हो रहा है वो है Umberto Eco. तो हम लोग देखते हैं, समझते हैं. It's a very easy piece of writing, easy busy. Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on. Umberto Eco एक प्रोफेसर हैं, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में. और इनकी एक बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है क्योंकि इनके जो आइडियाज़ हैं किस चीज़ पे, सेमियोटिक्स यानी स्टडी ऑफ साइन, लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस मतलब किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना, जो मैं अभी कर रही हूँ. दिस इज अ लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग. आई एम डूइंग द इंटरप्रिटेशन फॉर यू. And medieval aesthetics before he turned to writing fiction. तो उम्बर्टो इको क्या है? प्रोफेसर है. कहाँ पे है? यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में है. किसके लिए जाने जाते हैं? सेमियोटिक्स के लिए, लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस के लिए और मिडिवल एस्थेटिक्स के लिए. और अब फिक्शन लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है.
Literary fiction, academic texts, essays, children's books, newspaper articles, his written output is staggeringly large and wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. Name of the Rose नाम की एक नॉवल इन्होंने पब्लिश की है जिसकी लगभग 10 मिलियन कॉपीज सेल हुई है. Mukund, the English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things he does. तो उनके इंटरव्यूअर ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति इतना मल्टीटास्किंग कैसे हो सकता है. वो प्रोफेसर है, एसेज लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और इवन नॉवल लिख रहे हैं. Umberto Eco, maybe I give the impression of doing many things, but in the end I'm convinced I am always doing the same thing. तो Umberto Eco कहते हैं कि ठीक है, शायद लोगों को लगता होगा मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ. तो बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, मुझसे पूछते हैं हाउ डू यू मैनेज टू डू ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर अ क्रिकेटर एंड यू आर अ डांसर एंड यू आर राइटर दिस एंड दैट एंड दे से ओह इट्स सो ईजी, इट्स ओनली वन पीस ऑफ थिंग दैट आई डू. Mukund, which is Umberto Eco. Now that is more difficult to explain. Now Umberto gives a wonderful justification of being a multitasker. हम सभी ने void के बारे में सुना है केमिस्ट्री में. void जब हम एटम्स का अरेंजमेंट पढ़ते हैं तो void होती है खाली स्पेस. ठीक है, Umberto Eco ये कहते हैं कि हम सभी की जिंदगियों में, दिनचर्या में कई सारे voids होते हैं. सपोज मैं किसी का वेट कर रहा हूँ और उसको आने में 10 मिनट हैं. मैं उस 10 मिनट में क्या करता हूँ, एक आर्टिकल लिख लेता हूँ. तो आई यूटिलाइज दोज टाइनी पीसेस ऑफ वर्ड्स विच एग्जिस्ट और इसीलिए मैं मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ. स्ट्रेंज बट ट्रू. I have some philosophical interests and I pursue them through my academic work and my novels. Even my books for children are about non-violence and peace, you see. उन्होंने कहा टॉपिक मेरा सेम है, नॉन-वायलेंस, अहिंसा और शांति. मैं बच्चों के लिए भी उसी बारे में लिखता हूँ, मैं फिक्शन भी उसी बारे में लिखता हूँ, अकेडमिक वर्क भी उसी बारे में करता हूँ. The same bunch of ethical, philosophical interests. And then I have a secret. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe, eliminate the empty spaces in all the atoms? तो जो मैंने आपको कहा कि अगर एटम्स में से empty space को हटा देंगे, यूनिवर्स में से empty space को हटा देंगे, तो क्या होगा, यूनिवर्स एक मुट्ठी में आ जाएगा. इसी तरीके से हमारी दिनचर्या में, हमारी जिंदगियों में कई सारे एम्प्टी स्पेस होते हैं. हम क्या करते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं. 10 मिनट मिले, चलो रील चला लेते हैं, इंस्टा देख लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं, और वो 10 मिनट कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता. इसकी बजाय अगर हम उस 10 मिनट में कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, 10-10 मिनट मिल के पता नहीं कितना बड़ा काम खत्म हो जाएगा. द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट. तो अगर मैं इन एम्प्टी स्पेसेस को हटा दूंगा तो यूनिवर्स मेरी मुट्ठी में आ जाएगा. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. Say you are coming over to my place, you are in an elevator and while you are coming up, I'm waiting for you. This is an interstice, an empty space. जो मैंने आपको कहा कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप अभी आए नहीं हैं, मेरे पास टाइम है, मैं उस टाइम को यूज़ कर सकता हूँ. I work in empty spaces while waiting for your elevator to come up from the 1st to the 3rd floor. I have already written an article. मुकुंद, इंटरव्यूअर ने कहा, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स. हर व्यक्ति तो ये नहीं कर सकता. योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट. अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसने क्या पूछा. अगर आप एसेज पढ़ेंगे, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वो बहुत बोरिंग लगते हैं. ठीक है, इसकी बजाय अगर आप कोई नॉवल पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि फिक्शन है. तो इंटरव्यूअर ने उससे कहा कि आपके जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो आपके स्कॉलरली पीस ऑफ राइटिंग है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है. व्हाट डू यू डू टू मेक देम इंटरेस्टिंग? उसने कहा दैट आई राइट एग्जैक्टली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, द हिट एंड ट्रायल मेथड. जो चीज़ें मैंने फेस की, जो इश्यूज मुझे हुए, मैं एग्जैक्टली वैसा लिखता हूँ जो मैंने फेस किया, और इसीलिए वो बोरिंग नहीं लगते. It is a marked departure from regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? तो आपने जानबूझ के ऐसा अप्रोच एक्सेप्ट किया है या आप ऐसे ही हैं शुरू से? Umberto, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said scholars learn a lot of certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusion. Hypothesis होता है probable solution to the problem. Scholars क्या करते हैं, रिसर्च कर दिया, उसके बाद उसको मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेटेड डेटा और स्टफ को लिखते हैं. मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जैक्टली जो मैंने फेस किया, जो हिट एंड ट्रायल हुआ, जो इश्यूज फेस किए, वो लिखता हूँ. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done, by telling the story of research.
This is why my essays have a narrative aspect. Narration, you understand, narration is storytelling. किसी भी चीज़ में जब narration include हो जाता है, किसी भी चीज़ को जब हम कहानी के तौर पे बताने लग जाते हैं, वो interesting हो जाती है, isn't it? And this is why probably I started writing narratives so late at the age of 50 more or less. I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated. Roland Barthes is a wonderful essayist. वो हमेशा frustrated रहते थे क्योंकि वो essayist है, novelist नहीं है. क्या प्रॉब्लम है एसेइस्ट होने में और क्या अच्छा है नॉवेलिस्ट होने में? देखो, जब आप एसेइस्ट हो आपको केवल फैक्ट्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, रियलिटी लिखनी है. जब आप नॉवेलिस्ट हो आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर सकते हो, आप कुछ भी कहानी बना सकते हो, आप उसमें इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, मसाला सब कुछ ऐड कर सकते हो. He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do. I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. I had nothing to do one day and so I started. मुझे कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन फील नहीं हुआ क्योंकि मैं तो एक्सीडेंटली नॉवेल्स लिखने लगा. हाँ, नरेशन का मुझे शौक था, लिखते लिखते समझ आया कि नॉवेल्स भी इंटरेस्टिंग है और लिखी जानी चाहिए. मुकुंद, talking about novels, from being a famous academic you went to on becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of fiction, at least more than 20 of them. तो मुकुंद ने कहा कि आप प्रोफेसर हैं लेकिन आप तो बहुत बड़े नॉवेलिस्ट बन गए, आपने नेम ऑफ द रोज बहुत पॉपुलर नॉवल लिखी है. उम्बर्टो इको ने कहा ऑलमोस्ट 40 स्कॉलरली पीसेस लिखे हैं मैंने. मुकुंद, ओवर 40. अमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स. बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट उम्बर्टो इको एंड दे विल से ओह ही इज अ नॉवेलिस्ट. डज दैट बॉदर यू? मुकुंद ने कहा कि आपने लगभग 40 पीसेस लिखे हैं स्कॉलरली राइटिंग के, लेकिन जब लोगों से पूछा जाता है तो वो आपको एक नॉवेलिस्ट जानते हैं, एज प्रोफेसर या एज अकेडमिशियन नहीं जानते. क्या वो आपको परवाह देता है या परेशान करता है? उम्बर्टो इको ने कहा कि देखो, सिंपल सी चीज़ है, इसे हम समझते हैं अपनी लैंग्वेज में. अगर मैं एसेज लिखती हूँ, अगर मैं रिसर्च आर्टिकल्स लिखती हूँ, अगर मैं स्कॉलरली पीसेज ऑफ राइटिंग लिखती हूँ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पे जैसे सेमियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस, होगा क्या? बहुत कम लोग मेरी चीज़ को सुनेंगे या पढ़ेंगे. लेकिन अगर मैं एक नॉवल लिख रही हूँ जो कॉमन लोगों को अपील करती है, मुझे लोग उस प्रोफेशन से ज़्यादा जानेंगे. तो उम्बर्टो इको ने यही कहा कि नॉवल जो है ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा अप्रोचेबल होती है और इसीलिए लोग मुझे नॉवलिस्ट की तरह जानते हैं. तो आई हैव नो इशू. मेरे लिए मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं अपने आप को अकेडमिशियन मानता हूँ जो संडेज को लिखता हूँ केवल. Yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. It's not a joke. I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. तो मैं writers की meeting में नहीं जाता, मैं academicians की meeting में जाता हूँ. I identify myself with academic community. But okay, if they have read only the novels, I know that by writing novels I reach a larger audience. जब मैं कोई कॉमन चीज़ों पे, टॉपिक पे बोलूँगी, मैं ज़्यादा लोगों को अप्रोच करूँगी. जब मैं स्पेसिफिक चीज़ों पे बोलूँगी, मुझे कुछ ही लोग सुनेंगे. जैसे मैं 11th-12th की वीडियोज़ बना रही हूँ, तो ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ 11th and 12th will listen to me. If I'm talking about general English, communication, behavior, interpersonal skills, of course, people will listen to me more. I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. Mukund, which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It's a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology, and medieval history. Name of the Rose कहने को तो सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन ये मेटाफिजिक्स में भी जाता है. मेटाफिजिक्स इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड मैटर. मतलब who am I? From where have I come? What is beyond this life? वो होता है मेटाफिजिक्स. थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ गॉड, और मिडिवल हिस्ट्री यू नो. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? तो मुकुंद ने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड थी तो भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया. क्या आपको शॉकिंग लगा? Umberto Eco, no journalists were puzzled and sometimes publishers. And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experience. लोगों को लगता था कि लोगों को कचरा पसंद है और इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कोई पढ़ेगा नहीं. Consider there are 6 billion people on this planet. The Name of the Rose sold between 10 and 15 million copies. So in a way I reached only a small percentage of readers. देखा जाए तो 6 बिलियन लोग हैं, 10 से 15 मिलियन कॉपी सेल हुई है, तो मैं अभी भी बहुत लोगों के पास नहीं गया हूँ. But it is exactly these kinds of readers who don't want any easy experiences. ये वही हैं जिनको easy experiences नहीं चाहिए, or at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I need it, but not all day. मैं भी जब थकने के बाद रात की 9 बजे बाद कुछ देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इजी गोइंग टेलीविजन सीरीज चाहिए, सीरियल्स चाहिए. बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपीरियंसेस मैं नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर मैं वही चाहता हूँ.
Mukund, could the huge success of novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? मुकुंद ने कहा इतनी सक्सेसफुल जो आपकी नॉवल हुई, क्या वो इसलिए हुई क्योंकि वो मिडिवल हिस्ट्री के साथ डील कर रही थी? Umberto, that's possible, but let me tell you another story because I often tell stories like a Chinese wise man. एक और कहानी बताता हूँ. My American publisher said while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. तो मेरी जो पब्लिशर है, अमेरिकन पब्लिशर ने कहा कि मुझे नहीं लगता 3,000 से ज़्यादा कॉपी आपके सेल होगी एक ऐसे देश में जिसमें किसी को लैटिन नहीं आती और किसी ने कैथेड्रल देखा ही नहीं है. तो मुझे 3,000 कॉपीज़ का एडवांस दिया गया, लेकिन बाद में 2 से 3 मिलियन कॉपीज़ यूएस में सेल हो गई. अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मिडिवल पास्ट फार बिफोर माइन. आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री. मुझे नहीं पता, एक रहस्य है कि कैसे इतनी सक्सेसफुल हुई. Nobody can predict it. I think I had written 10 years later, earlier, it wouldn't have been the same. मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने अभी वो नॉवल लिखी, वो रेलेवेंट थी. अगर मैं 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखता, शायद वो इतनी रेलेवेंट नहीं होती. Why it worked at that time is a mystery. मुझे नहीं पता वो कैसे काम किया. एग्जाम्पल, अगर मैं आज के समय में AI के बारे में लिख रही हूँ तो वो सक्सेस होगा बिकॉज दैट्स अ न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक अमंग पीपल. अगर मैं 10 साल बाद AI के बारे में लिखूंगी, AI ऑलरेडी इतनी ऊंचाइयों पे जा चुका होगा, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग वुड बी नोइंग व्हाट इज AI. शायद मैं इतना अपील नहीं कर पाऊंगी. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन डू यू राइट अ पर्टिकुलर स्टफ एंड इज दैट रेलिवेंट इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो? So that's it with the chapter, The Interview. We will be meeting to discuss yet another important chapters of class 11th and 12th English. Till then, take care. Bye-bye.